Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start second poem of class 9th, Wind. Wind is a poem where the poet describes the action of the wind. It breaks the shutter of the windows, throws down the books on the shelf, and demolishes frail houses. It blows out weak fires, but it makes strong fires roar. The poet conveys the idea that nobody cares for the weak. The poet advises the weak ones to make themselves strong. बच्चों, इस कविता में कवि हवा के काम का वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है हवा के कार्यों को। यह खिड़की के नीचे शीशे तोड़ देती है, शेल्फ या खिड़कियों पर रखे हुए पुस्तकों को फेंक देती है और कमज़ोर मकानों को गिरा देती है, मगर इनका मजबूत मकानों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन अगर आग तेज़ है तो यह उसको और ज़्यादा तेज़ बना देती है। तो कवि यह विचार व्यक्त कर रहा है कि कमज़ोर लोग जो होते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। इसीलिए कवि जो है उन वीक पीपल्स को सलाह देता है, एडवाइस करता है कि वो अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। So the poem opens with the poet's request to the wind. Addressing it directly, he wants the wind to blow gently so that the shutters of the windows are not broken and the papers are not blown about which were on shelf. The poet also urges the wind not to throw books down on the shelf. कविता के पहले भाग में हवा की क्रिया का वर्णन करता है। कवि हवा से कहता है कि धीरे धीरे आए। वह हवा से प्रार्थना है कि खिड़कियों के शीशे को न तोड़े, कागज़ों को न बिखराए और शेल्फ में पड़ी हुई जो बुकें हैं उनको ना गिराए। मगर होता क्या है ये हम आगे की लाइनों में पढ़ेंगे। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। कहने का मतलब, इन दीज लाइन्स the poet demonstrates the damage caused by the strong and fierce wind. It has thrown down all the books from the shelf and turned their pages. It causes the clouds make run. The poet believes that the wind, by destroying the weak things, seems to mock at their frailty and fragility. कहने का मतलब, कवि के तमाम निवेदन के बावजूद हवा क्या करती है, किताबें गिरा देती है और पुस्तकों के पन्नों को फाड़ देती है। और जब कवि कहता है कि कमज़ोर लोगों का मजाक मत बनाओ, यह सब कुछ तहस नहस कर देती है। यू ब्रॉट रेन अगेन, हवा क्या करती है, बारिश फिर से ले आती है। और यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कवि जो है वो कह रहा है कि हवा, तुम कमज़ोरों का मजाक बना रही हो, उनका मजाक बनाना बंद कर दो, उन्हें उनका उपहास मत करो। लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters,
crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. So students, these line describes the havoc, the disasters caused by a fierce wind. What she done? It destroys the inanimate things like weak houses, doors, rafters, woods, and similarly the difficulties of discouraging human beings. The poet regards the winds as a god who acts like a winnower and sort and destroys everything that comes in his contact. This means that weak people and things are crushed by the destructive power of the wind. So हवा क्या करती है? यह कमज़ोर घरों को, जर्जर दरवाज़ों को, सहतीरों को, यहाँ तक कि कमज़ोर दिलों को भी, जो मनुष्य हैं जिनका हार्ट बहुत कमज़ोर है, उनको भी परेशान कर देती है, उनका नाश कर देती है। हवा हर उस चीज़ को नष्ट कर देती है जो कमज़ोर है। इसीलिए पोएट क्या कहता है, हमें एडवाइस करता है कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें मजबूत बनना है ताकि हम अडिग रह सकें। लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। He would not do what you tell me, so come let us build a strong home. Let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. Here the poet declares he would not do what you tell him. Means the poet believes that wind god acts according to his own wishes and does not relent even when people urge him. Therefore, it is essential to equip our buildings, our bodies, and our hearts with immense strength so that we may withstand strong winds. As far as human lives are connected, the wind is a symbol of daunting difficulties and challenges that can be overcome only with the exceptional strength, resistance, resilience, courage, and firm determination. So, here the poet is advising us to be strong and steadfast. Let's read last stanza of the poem. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. And in the concluding lines, poet is admiring air, wind. Why? Because he believes that if we are strong enough not to be shaken by the wind, it will become our friend. Here wind stands for the hardships of life. These hardships can make only weak people stagger. The strong people become stronger. Still by facing the difficulties, just like the wind can extinguish only weak flames of fire and the strong flames burn stronger. Means he makes strong fires roar and flourish. Still with a loud roar. If we befriend the wind, it will prove to be good for us. So let's see again. Wind comes softly. हवा धीरे आओ. Don't break the shutters of the windows. खिड़कियों के शीशों को मत तोड़ो. Don't scatter the papers. पेपर्स को मत बिखराओ. Don't throw down the books on the shelf. शेल्फ में रखी हुई किताबों को मत फेंको. There look what you did. देखो वहाँ पर तुमने क्या किया. You threw them all down. तुम उन सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया. You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया. You brought rain again. तुम फिर से बारिश ले आई. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम बहुत चतुर हो. तुम्हें मज़ा आता है कमज़ोर व्यक्तियों को सताने में. Frail crumbling houses. नाश करने में. कमज़ोर घरों का, कमज़ोर दरवाज़ों का, कमज़ोर छतों का और कमज़ोर पेड़ों का, जंगलों का और
असहाय व्यक्तियों का और जीवित प्राणियों का। या फिर क्रम्बलिंग हर्ट्स, बहुत ही जर्जर या बहुत ही कमज़ोर हृदयों का भी तुम बहुत नुकसान करती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। द विंड गॉड विनोज, विनोज मीन्स होता है उखाड़ कर फेंक देना। कहने का मतलब टू सेपरेट फ्रॉम द अर्थ। तो हवा के जो देवता हैं क्या करते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं सभी चीज़ों को। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं जैसा कि आप उनसे कहते हैं। इसलिए आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, चलो मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को अच्छे से कसकर लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अभ्यास करते हैं अपने शरीर को मजबूत बनाने का। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते हैं। एंड द विंड विल बी ए फ्रेंड विद अस, और हम अगर ऐसा करेंगे तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि जो हवा है वह कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन वह जो विंड है वो क्या करता है, जो विंड देवता है वह हवा को, जो तेज़ आग होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उकसा देते हैं, प्रचंड बना देते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उनकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, इसलिए हमें उनकी प्रतिदिन प्रशंसा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर पोएम, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, एंड यू हैव टू डू comprehension related to this poem. Thank you बच्चों।